یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اب آپ محمود احمد خان سے خبریں سنیے۔ پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کو پاکستان کے لیے اپنی مالی امداد پر غور کرنا چاہیے، وزیر دفاع۔ رابطہ دفتر سری نگر میں متعدد وفود، عمر عبداللہ سے ملاقی۔ وزیر اعلیٰ نے تمام مسائل کو حل کرنے اور حکمرانی کا مؤثر نظام میسر رکھنے کا دلایا یقین۔ فوج، پولیس اور سی آر پی ایف کے اعلیٰ افسروں نے جنوبی کشمیر میں حالیہ آپریشنوں کو دیا اہم کامیابی قرار۔ اور جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں گرمی کی شدت میں روز افزوں ہو رہا ہے اضافہ۔ گرمی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر عملانے کی ضرورت پر زور۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے اپنی مالی امداد پر غور کریں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج ایئر فورس اسٹیشن بھوج میں فضائیہ کے جوانوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ان رقومات کا بیشتر حصہ پاکستان میں دہشت پسندی کے بنیادی ڈھانچے پر خرچ کیا جائے گا۔ وزیر موصوف نے آپریشن سندور کے دوران بھارتی فضائیہ کی فوری اور فیصلہ کن کارروائی کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ اس کارروائی پر ملک کے اندر اور باہر تمام بھارتیوں کو ناز ہے۔ انہوں نے کہا IMF دوارا جو کہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، اس کے دوارا انڈائریکٹ فنڈنگ اسے نہیں مانا جائے گا۔ میں دنیا کے لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کے سمے میں پاکستان کو کسی بھی طرح کی آرتھک سہایتا ٹیرر فنڈنگ سے کم نہیں ہے۔ بھارت یہی چاہے گا کہ IMF پاکستان کو اپنی $1 بلین کی اسسٹنس پر وہ پنروچار کرے اور آگے بھی کسی بھی طرح کی سہایتا دینے سے IMF پرہیز کرے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت لوگوں کے مسائل کو تندہی کے ساتھ ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے، نیز انہیں حکمرانی کا ایک مؤثر عمل دستیاب کرانے کی وعدہ بند ہے۔ وہ آج رابطہ آفس سری نگر میں متعدد وفود کے ساتھ ملاقات کے دوران ان کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے لوگوں کے مسائل غور سے سنے اور انہیں یقین دلایا کہ عوامی نوعیت کے معاملات کو جلد از جلد حل کیا جائے گا۔ اس موقع پر صحت کی وزیر سکینہ یتو بھی موجود تھیں۔ انہوں نے وفود کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت لوگوں کی راحت رسانی کرنے کی وعدہ بند ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور عوام کے درمیان دوریوں کو کم کرنے کے لیے پبلک آؤٹ ریچ پروگرام کلیدی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ انہوں نے پروازوں کے منسوخ ہونے کی وجہ سے درماندہ 1895 عازمین حج کو سفر محمود پر روانہ کرنے کے لیے اضافی حج پروازیں چلانے کا معاملہ مرکزی سرکار کے ساتھ اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عازمین کی بلا خلل روانگی کو یقینی بنانا سرکار کی ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیراعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ IGOT پلیٹ فارم پر کرم یوگی کی تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ پیش رفت سیکھنے کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ہماری منظم کوششوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 18 ریاستوں اور تمام مرکزی وزارتوں میں جاری کاوشوں سے وزیراعظم نریندر مودی کے وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ حفاظتی عملے نے پچھلے چند روز کے دوران جنوبی کشمیر کے کلگام اور پلوامہ ضلعوں میں چلائے گئے یک کے بعد دیگرے ملیٹنسی مخالف آپریشنوں کو کلیدی نوعیت کا قرار دیا۔ ان آپریشنوں میں 6 ملیٹنٹ مارے گئے۔ فوج، پولیس اور CRPF کے اعلیٰ افسروں نے آج سری نگر میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران ان آپریشنوں کی تفاصیل پیش کی۔ وکٹر فورس کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل دھننجے جوشی نے اس موقع پر میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، جب سے پہلگام اٹیک ہوا ہے اس کے بعد سے ہم نے کئی ایریاز کو ایک فوکس ایریا بنایا تھا جن کو کہ ہم ایک فوکس وے میں ٹارگٹ کریں گے۔ اور جیسے ہمیں انٹیلیجنس انپوٹس آ رہے تھے کہ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں وہ برف پگھلنے کے بعد جنگلوں میں ہائر ریچز میں چلے گئے ہیں، اور اسپیسیفکلی کیلر کے ایریا میں ہمارے کو انپوٹ آیا کہ ایک ٹیررسٹ گروپ وہاں پر ہو سکتا ہے۔ 13 کی مارننگ کو جب ایک سسپیشیس موومنٹ دکھائی دی تو پارٹیز نے کلوز ان کر کے ان کو چیلنج کیا، اور چیلنج کرنے کے اوپر جو ٹیررسٹ ہیں انہوں نے ترنت فائر کھولا۔ اس کے بعد ایک انکاؤنٹر سٹارٹ ہوا، لیکن پارٹیز نے کلوز ان کر کے ان کو نیوٹرلائز کیا۔ اس موقع پر IGP کشمیر VK بھردی نے کہا، ان دونوں آپریشنز میں CRP، آرمی، جموں کشمیر پولیس کا شانہ بشانہ رول رہا ہے، اور ہمارے جوانوں نے اور ہمارے افسروں نے کندھے سے کندھا ملا کے ان آپریشنز کو انجام دیا ہے۔ سرسری طور پہ یہ 2 آپریشنز ایک کیلر کے علاقے میں جو کہ شوپیاں میں آتا ہے وہاں ہوا، اور دوسرا جو کہ کل جو تھا ترال کے علاقے میں ہوا۔ ان دونوں آپریشنز میں 6 ٹیررسٹ کو نیوٹرلائز کیا گیا۔
CRPF के IGP ऑपरेशंस मितिश कुमार ने ऑपरेशनों के दौरान मुख्तलिफ सलामती एजेंसियों की मुश्तरका काविशों की सताइश की। उन्होंने कहा, ये जो अभी लगातार ऑपरेशंस बने हैं पिछले कुछ समय में, ये जो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच के का जो एक प्रभावशाली समन्वय है, ये उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है और उसी कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन जो प्रोफेशनल है उसकी वजह से ही हम इन सफल ऑपरेशंस को कारगर कर पाए हैं। आगे आने वाले समय में भी मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूं कि ये जो कोऑर्डिनेशन हम सबका, ये सभी सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंसीज का लगातार जो बना है, आगे भी बनाएगा, आगे भी रहेगा, जिसकी वजह से हम सफलतापूर्वक जम्मू एंड कश्मीर से आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया कर सकेंगे। 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के रद्द अमल में भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर अमल में लाया, उसकी कामयाबी पर समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने अलग अलग अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया है। जम्मू में मुकीम एक कश्मीरी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने ख्यालात का यूं इजहार किया। मैं पीके रैना ऑपरेशन सिंदूर के बारे में यही कहना चाहूँगा कि भारत की तरफ से इस ऑपरेशन को लॉन्च करने का मकसद, जिसको सारे देशवासी भारत माँ के नाम से पुकारते हैं, उस भारत देश के माथे पर लगे सिंदूर की सलामती को यकीनी बनाना है। दुनिया को इस सिंदूर की अहमियत को समझाना है। इसकी आन बान और शान की हिफाजत के लिए कोई भी कदम उठाने के अपने पक्के इरादे और अज़्म का इरादा करना है। यह ऑपरेशन किसी मुल्क की सलामती के लिए खतरा पैदा करने के लिए, किसी मुल्क की ताकत को आजमाने के लिए नहीं, बल्कि उन आतंकवादियों और उनके आकाओं तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए अंजाम लाया गया या आगे भी अंजाम लाया जाएगा, जो भारत माँ के माथे पर लगे सिंदूर को मिटाने की कोशिश करेंगे। दरियास्ता बीजेपी के सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर ने ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक जारी तिरंगा रैली की तारीफ करते हुए कहा है कि इस रैली से पूरे मुल्क और बैरून मुल्क में हुब्बुल वतनी के जज्बे को तक़वियत हासिल होगी। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो तिरंगा रैलियों से तरगीब हासिल करके कौम की तामीर में अपना भरपूर रोल अदा करें। जल शक्ति और कबायली अमूर के वजीर जावेद अहमद राना ने आज मनकूट सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सरहद पार की शेलिंग से मुतासरा इलाकों का दौरा करके वहां लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत दी कि वो मुतासरा कुंबू में रिलीफ वागुजार करने के मामलात में तेज़ी लाएं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा की क़यादत में पार्टी के एक वफद ने सांबा और कठुआ ज़िलों में बैनुल अक़वामी सरहद पर पाकिस्तान की शेलिंग से मुतासरा इलाकों में सूरत हाल का जायज़ा लिया। वफद ने असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा, मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा और दीगर कई लीडर भी मौजूद थे। महकमे ज़राअत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार ने आज पुंछ ज़िले के सरहदी इलाकों का दौरा करके वहां हालिया शेलिंग से मुतासरीन से मुलाकात की। इस मौके पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने उन्हें मुतासरा इलाकों में जारी रिलीफ और बाज़ाबाद कारी के कामों के बारे में जानकारी दी। आज अमन अमान के साथ मिलकर जिंदगी गुजारने का बैनुल अक़वामी दिन है। आज के दिन आलमी अमन को तक़वियत बख्शने में इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशों को उजागर किया जाता है। एक रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबरा तारिक राथर। पुरअमन समाज में मिलजुल कर रहने का मतलब ये है कि एक दूसरे के नजरियात को सुनकर उन्हें कबूल करना, उन्हें तस्लीम करना और समाज के हर एक तबके से वाबस्ता अफराद को वकार और इज्जत बख्शी जाए। इसके साथ साथ आज के दिन बैनुल अक़वामी सतह के मसाइल को हल करने के लिए आलमी इश्तराक की अहमियत को भी उजागर किया जाता है। इस दिन की अहमियत के बारे में अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में शोबे सोशियोलॉजी की सरबरा और क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर डॉक्टर शबनम आरा ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, There should be peace, tolerance, inclusion, understanding and solidarity, not only among individuals but between various communities across the globe. For example, कई बार देखा जा रहा है कि men think that they are superior, but other gender को भी उतनी equality उतना ही मानना चाहिए जितना कि एक gender है। इसी तरह से various communities are there, whether they are white, black, all over the world या किसी दूसरे मजहब से हैं, तो accommodate करना है, tolerate
सेलिब्रेट करना है। अगर मेरा इस दुनिया में होना इम्पोर्टेंट है, क्या दूसरे इंसान का भी उतनी इम्पोर्टेंस है, दूसरा इंसान भी उतना सिग्निफिकेंट। वी हैव टू रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी। कोई भी, चाहे रिलीजियस कास्ट, क्रीड, कोई भी डाइवर्सिटी हो, उसको हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, मानना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में। देन वी शुड हैव एम्पैथी एंड कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देन देयर शुड बी इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, एंड ऑल्सो देयर शुड बी नॉन वायलेंस। ये एक मैक्सिम होना चाहिए। उसके बावजूद मेरी ये राय है, जब हमारा एक डायलॉग होगा, जब हम एक दूसरे से बात करेंगे, जब हम एक दूसरी कम्युनिटीज को समझने की कोशिश करेंगे, टू बिल्ड मोर इंक्लूसिव एंड पीसफुल वर्ल्ड अराउंड अस। इसको ग्रास रूट लेवल पे अगर हम शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ये अपना अर्बन सेंटर से होगा, अपने स्टेट से होगा, फिर अपने मुल्क से होगा, फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड वी कैन सी अ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी अराउंड अस। बहरहाल एक शमूलियाती और पुरअमन समाज वजूद में लाने के लिए लाजमी है कि रंगो नस्ल, जात पात, मजहब, सियासत और दीगर वाबस्तगियों से बालातर होकर समाज में मौजूद तमाम तफर्रुकात को दूर किया जाना चाहिए, ताकि समाज के हर एक तबके को इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने का मौका फराहम हो सके। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एआर और डीटीएच पर भी समाअत कर सकते हैं। आज रोशनी का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन 1960 में एक मारूफ माहिर तबियात और इंजीनियर थियोडोर मेमन की तरफ से पहली कामयाब लेज़र सर्जरी की याद में मनाया जाता है। इस दिन की अहमियत के बारे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर में शोबे फिजिक्स के सरबरा प्रोफेसर प्रिंस गनाई ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, लाइट काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है करंट टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में। आपको पता होगा जो मेडिकल फील्ड में लाइट की क्या इम्पोर्टेंस है। लाइट सर्जरी में लेजर लाइट यूज होती है, काफी सर्जिकल प्रोसीजर्स आजकल लेजर लाइट से किए जाते हैं। एक्सरे भी लाइट की एक्चुअली एक एप्लीकेशन ही है। डिफेंस में राडार सिस्टम्स, लोकेशन ऑफ द एनिमी एयरक्राफ्ट्स एंड जो करंट वॉर फेयर है, जैसे ड्रोन्स की जो ऑप्टिक्स होती है टू लोकेट एनिमी टारगेट्स, ये सब लाइट की एप्लीकेशंस ही है। जो सन से हमें लाइट मिलती है उसको हम हार्नेस करते हैं एंड सारी कायनात उस एनर्जी पे डिपेंड करती है जो सन से मिलती है। हमारी सारा एग्रीकल्चर से उस पे डिपेंड करता है, तो ये भी एक लाइट की एप्लीकेशन ही है। फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी और दीगर अफसरों ने सूबेदार मेजर पवन कुमार की बहादुरी और हिम्मत की तारीफ करते हुए उन्हें खराज अकीदत अदा किया है। सूबेदार मेजर पवन कुमार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान अपनी जान निछावर की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में फ़ौज ने कहा है कि आन जहानी की कुर्बानी को कभी भी फरामोश नहीं किया जाएगा। फ़ौज ने कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो सोगवार कुंबे के साथ शाना बशाना खड़ी है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में कल एडवांसिंग फिजिकल एंड डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के मौजू पर एक सेमिनार मुनक्किद हो रहा है। इस सेमिनार से जुड़े क़ुव्वत बीनाई से महरूम एक स्कॉलर आकिब रहमान ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, कल यानी 17 मई 2025 बरोज सैटरडे इंक्लूसिव इनसाइट्स फाउंडेशन और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। इस इवेंट का मकसद ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करना है। इसमें कुछ मुअज़्ज़ज़ शख्सियात अपने ख्यालात का इजहार करेंगे कि कैसे हम जुम्मू और कश्मीर और पूरे मुल्क को इंक्लूसिव बना सकते हैं, ताकि जो जिस्मानी तौर से माजूर अफराद है वो पूरी तरह से हमारे समाज का हिस्सा बन सकें। इसके तहत हम दावत देते हैं सिविल सोसाइटी को, बिजनेसेस को और तमाम जिस्मानी तौर माजूर अफराद को कि वो आए और इस इवेंट में अपनी शिरकत करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरबराही वाली सरकार इब्तिदा से ही लोगों के मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो मरकूज कर रही है। आज अपने हलके के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के दौरान उन्होंने लोगों के मसाइल सुने। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि तमाम जायज़ मुतालबात को पूरा करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाले जो 240 आज़मीन हज 9 मई को उनकी परवाज़ मनसूख होने पर श्रीनगर में दरमांदा होकर रह गए थे को अब मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना किया गया है। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल
जिंद रैली जोन चसाना रियासी के उस वक्त के इंचार्ज हेडमास्टर सजाद हुसैन और अब्दुल अजीज नामी ठेकेदार के खिलाफ रकूमत के खुर्द-बुर्द की पादाश में एक केस दर्ज किया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और जम्मू शहरों के साथ साथ दीगर जिलों में दर्ज हरारत में रोज़ अफजों इजाफा हो रहा है और कई इलाकों में गर्मी ने शिद्दत इख्तियार की है। इस सूरत हाल में समाज के सभी तबकों बिलखुसूस बच्चों, बुजुर्गों और हामिला ख़वातीन को एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत है। जारी मौसमी सूरत हाल के ताल्लुक से श्रीनगर में महकमे मौसमियात के सरबरा डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मौसम अभी मुसलसल ड्राई चल रहा है, खुशक चल रहा है पिछले कई दिनों से, और आने वाले दिनों में भी खासकर 18 लेट आफ्टरनून तक जो है मौसम ड्राई रहने के चांसेस हैं। इस बीच दर्जे हरारत में भी लगभग 1-2 डिग्री का इजाफा हो सकता है फर्दर, तो इसके कारण जो है हीट वेव लाइक कंडीशन जो है रह सकता है, खासकर वैली के खासकर मैदानी इलाकों के अंदर और इसी तरह जम्मू डिवीजन के भी खासकर मैदानी इलाकों के अंदर। तो इस बीच जो है हीट वेव के कारण जो है थोड़ा सा गर्मी और डिस्कम्फर्टनेस बढ़ सकते, तो इसके लिए खासकर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह है और जो खासकर मजदूर लेबरर्स जो काम करते हैं खुली धूप में, वो थोड़ा सा अपने आप को एहतियात करें। खासकर दोपहर 12 बजे से लेकर लगभग 3 बजे तक, 3 इवनिंग से लेकर 19 इवनिंग तक जो है मौसम थोड़ा सा क्लाउडी रहने के चांसेस हैं। इस बीच कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशों के साथ साथ थंडर एक्टिविटी, कुछ एक जगहों पे गस्टी विंड्स रहने के चांसेस हैं, खासकर 18 इवनिंग से लेकर 19 इवनिंग तक। फिर 20th ऑनवर्ड्स एक बार फिर जो है दर्जा में इजाफा देखने को मिल सकता है और लगभग 24th इवनिंग तक एक बार फिर जो है गर्मी रहने के चांसेस हैं, हॉट एंड ड्राई वेदर। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान चंद एक मकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 30.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 40.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलूई आफ्ताब सुबह 5:27 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:27 पर होगा। सामीन, आज की सुर्खियों पर और एक नज़र। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड को पाकिस्तान के लिए अपनी माली इमदाद पर गौर करना चाहिए, वज़ीर दिफ़ा। राबता दफ्तर श्रीनगर में मुतअद्दिद वफूद उमर अब्दुल्ला से मुलाक़ी, वज़ीर आला ने तमाम मसाइल को हल करने और हुक्मरानी का मुअस्सर निज़ाम मैसर रखने का दिलाया यकीन। फ़ौज, पुलिस और CRPF के आला अफसरों ने जनूबी कश्मीर में हालिया ऑपरेशनों को दिया अहम कामयाबी करार। और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत में रोज़ अफजों हो रहा है इजाफा, गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अमलाने की ज़रूरत पर जोर। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। इस वक्त हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।